મિત્રો, પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા બીજો એનું સત્ર અને એનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. આપણે આપણા બીજા વક્તા આપ સૌના સંદેશા પરથી ખ્યાલ આવે છે કે આપ સૌ એમને સાંભળવાના માટે પણ કેટલા બધા ઉત્સુક છો. એવા માનનીય શાસ્ત્રીજીને આપણે વંદન કરીએ અને હું સરને શોધી રહ્યો છું જેથી એમને સ્ક્રીન પર મેળવી શકીએ. મારે પહેલા શાસ્ત્રીજીનો એક નાનકડો પરિચય પણ આપવો છે. કૃપયા અને પહેલા એક કામ કરી લેવા દો. ફૂલચંદ શાસ્ત્રીજી, એમનો એક નાનકડો પરિચય આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું. પૂજ્ય શ્રી ફૂલચંદ શાસ્ત્રીજી પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીના ચરણ કમળમાં સમર્પિત 40 વર્ષના પૂજ્ય શ્રી ફૂલચંદ શાસ્ત્રીજી અસુ ઉગતા સૂરજ તરીકે ઓળખાય છે. તેઓ ઉમરાળામાં સ્થાપિત આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્રના સંસ્થાપક છે. ફૂલચંદજી વિશ્વના 153 દેશોની યાત્રા કરનારા પ્રથમ ભારતીય રહેવાસી નાગરિક છે. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક, લોકપ્રિય વક્તા, વિરાટ દ્રષ્ટિવાન લેખક, આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં અનેકાનેક ચાહક અનુયાયીઓને માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. તેઓએ અત્યાર સુધી આધ્યાત્મિકતા તથા શાકાહાર પર અનેક પુસ્તકોની રચના કરી છે. તેમના પ્રવચનો અને સાહિત્યથી પ્રેરિત થઈને કેદીઓ સહિત ઘણા વિદેશીઓએ તેમને સ્વેચ્છાએ શાકાહાર અપનાવ્યો છે. દેશ વિદેશમાં તેમના લોકપ્રિય આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળીને અનેકાનેક જીવોના જીવન પરિવર્તિત થયા છે. જૈન મહારાજ સાહેબ તથા મહાસતી તેમજ જૈન વિદ્વાનો પોતાના આત્માના હિતને માટે તેમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓએ અમેરિકામાં જૈના કન્વેન્શન, યંગ જૈન્સ ઓફ અમેરિકા કન્વેન્શન, યંગ જૈન પ્રોફેશનલ્સ તેમાં માર્મિક પ્રવચનો આપીને શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. પર્યુષણ મહાપર્વ અને જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલન આત્મસાધના શિબિરોમાં જ્ઞાન પ્રભાવના હેતુ દર વર્ષે તેઓ અમેરિકા અને કેનેડામાં ધર્મ પર્યટન કરે છે. તેમને જ્ઞાનાવતાર, સર, આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાશાસ્ત્રી, ન્યુમરોલોજિસ્ટ ઓફ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા, લબ્ધિધારી મહાપુરુષ વગેરે અનેક પદવીઓ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમનો જન્મ 25મી જુલાઈ 1981ના શુભ દિને ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા ગામમાં અને 19 વર્ષની અલ્પ વયે 1500 આધ્યાત્મિક ગ્રંથ તેમને કંઠસ્થ હતા, જે તેમના પૂર્વજન્મના સંસ્કારનો પરિચય આપે છે. ફિલિપિન્સમાં એકવાર તેઓ 35 રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાઓમાં પ્રવચન આપી ચૂક્યા છે. તેઓ સન 2009માં મુંબઈમાં ચૈતન્ય ચમત્કાર વિષય ઉપર એક જ આસનથી ઉઠ્યા વિના સળંગ 78 કલાક સુધી તેમણે પ્રવચન આપ્યું. અત્યાર સુધી તેઓ 35,000 કલાકના પ્રવચન આપી ચૂક્યા છે, જેમાંથી તેમના 10,000 કલાકથી પણ વધુ પ્રવચનો www.fulchandshastri.com પર નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ છે. વર્તમાનમાં શ્રી શાસ્ત્રીજી વિશ્વભરમાં ધ મેન વિથ અ મિશનના ઉપનામથી લોકપ્રિય થયા છે. તેઓએ તેમના ગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાના માટે અત્યાર સુધી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર મિશનના માધ્યમથી જીના ગમના સાર આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રને વિશ્વના 153 દેશોની 415 ભાષાઓમાં અનુવાદ કરીને 1 લાખ કેન્દ્ર પરથી સ્થાપના કરેલ છે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર મિશન પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના 150મા જન્મદિને 4 નવેમ્બર 2017ના દિને સફળ સંપન્ન થયું. તેઓએ વિશ્વભરમાં અનેક જીવોના જીવનમાં જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલિત કરવાનું અદ્ભુત કાર્ય આરંભ કર્યું છે. આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર દ્વારા સમસ્ત વિશ્વમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સિવાય મેડિકલ, ચેરિટેબલ, એજ્યુકેશનલ તથા સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. તેમના સાનિધ્યમાં મોક્ષ માર્ગના સાધકો 142 પ્રત્યક્ષ અને 415 પરોક્ષ જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલન આત્મસાધના દ્વારા આત્મસાધનાના પ્રયોગો કરવા પધારી શકે છે. તેમના પ્રવચનો, સુવિચારો અને અન્ય માહિતી મેળવવા માટે
એક નંબર જે આપવામાં આવ્યો છે તેના ઉપર વોટ્સઅપ બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં આપ જોડાઈ શકો અને એ નંબર છે 9624446142. તો આવા શાસ્ત્રીજીને મેળવીને આપણે સૌ આજે ધન્ય થઈ રહ્યા છીએ. जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है, ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते हैं कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में कहीं भी मिला नहीं हूं। मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार के परमाणुओं से त्रिकाल स्पर्शी हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया ज्ञानमयी होती है। प्रत्येक क्रिया के काल में यह सहज ही भेद विज्ञान की धारा बहती है। सहज ही यह जागृति रहती है कि मैं ज्ञायक देव। सहज ही यह जागृति रहती है कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। एक समय में प्रकट होने वाली यह निर्विकल्प अनुभूति, एक समय के पुरुषार्थ से प्रकट होने वाली यह निर्विकल्प अनुभूति आज के इस सत्संग का विषय है आत्म जागृति परम धर्म। जागे को सदा ही सवेरा है, सोते को सदैव रात। सत्संग का समय था 9:30। यह चैतन्य तत्व विचार नहीं था, वरना 7:42 पर शुरू हो जाता। आप ज्ञान दीपकों ने बहुत लंबा इंतजार किया।
यही तो आप परमात्माओं की साधना है, यही तो आप परमात्माओं का धैर्य है। रात्रि में इतनी देरी के बाद भी आप सभी ज्ञान दीपक इंतजार करते रहे। जिस पर मेरा जोर है, आत्म जागृति परम धर्म है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संक्षिप्त में यह बताया है, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। हिंसा और अहिंसा, आप लोगों ने यह सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। मगर अहिंसा परम धर्म है, यह अहिंसा है क्या? कि रागादि भावों की उत्पत्ति न होना यह अहिंसा है। मगर रागादि भावों की उत्पत्ति कैसे न हो, उसका मूल कारण क्या? मूल कारण है आत्म जागृति। क्योंकि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना, राग से एकत्व ममत्व छूटे बिना, रागादि भावों का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए आज के सत्संग का नाम रखा आत्म जागृति परम धर्म। धर्म को पाने के लिए आत्म जागृति। हम सब अधर्मी हैं, धर्म को पाना चाहते हैं। हम धार्मिक होना चाहते, धर्म को अपनाना चाहते। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि धर्म छोड़ा या पाया नहीं जा सकता। धर्म भूला जा सकता है और याद किया जा सकता है। धर्म के संबंध में बेहोशी हो सकती है, धर्म के संबंध में जागृति रह सकती है। खोने और पाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी दूर चले जाओ, नरक में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, मगर अपने से दूर कभी नहीं जा सकते, स्वरूप से दूर कभी नहीं जा सकते, परायों के निकट नहीं जा सकते और स्वयं से दूर नहीं जा सकते। और इस जागृति का नाम ही धर्म है। इस जागृति का नाम ही देह होने पर देहातीत दशा है। जागृति प्रकट होते ही कुछ नया नहीं होता, सिर्फ भ्रम मिट जाता है। जैसे घना अंधेरा हो और घने अंधेरे में तुम्हें यह भ्रम हो गया हो कि यहां सांप है, और जैसे ही उजाला हुआ और तुमने देखा कि रस्सी है, रस्सी है यह तुमने देखा, तब सांप चला नहीं गया, क्योंकि सांप पहले भी नहीं था। उजाला आने से सांप चला नहीं जाता, उजाला आने से सांप संबंधी भ्रम चला जाता है। रस्सी थी और रस्सी दिखाई देने लगती है।
आत्मा की अनुभूति होती है तब देह चला नहीं जाता। देह तो रहता है, मगर यह श्रद्धा होती है कि चैतन्य तत्व जहां मेरी सत्ता है, जहां मेरा अस्तित्व है, वहां ये देह के अनंत परमाणुओं का अस्तित्व नहीं। इसलिए यह कहता हूं, अनंत परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता का दर्शन, यह दर्शन तभी हो सकता है जब निज चैतन्य का दर्शन हुआ हो। देह में रह करके भी जो देह में नहीं रहता है, देह में रहता है, ये दुनिया तो देखती है, मगर वह देहातीत हो गया। इसी का नाम तो आत्म जागृति है। मेरा आप ज्ञान दीपकों के लिए यही प्रयास है कि सपने को मत छोड़ना। आज तक यही हुआ, हमने सपने को छोड़ना चाहा, एक सपने में से दूसरे सपने में जाते हैं, दूसरे सपने में से तीसरे सपने में जाते हैं, मगर सपने से मुक्त हो जाना, उसका उपाय है जाग जाना। जैसे रात्रि में एक सपना देखा और सपने में यह देखा कि मैं सम्राट हूं, और फिर वह सपना चला गया, और फिर यह सपना देखा कि मैं भिक्षुक हूं, फिर वह सपना भी गया और यह देखा कि मैं देव हूं या फिर मैं नारकी हूं। हमारे सपने बदलते रहते हैं, सपने बदलते रहते हैं, मगर सपने आज तक छूटे नहीं हैं, क्योंकि सपने से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जागना। और जब तक चैतन्य तत्व की यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती, तब तक जागृति नहीं होती। और जैसे ही तुम जागे कि पहचान न पाएगी ये दुनिया, क्योंकि जलते हुए दिए और न जलते हुए दिए, उनके बीच में वजन की दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है, दोनों का वजन एक सा है। मगर अंधा नहीं पहचान पाता, आंख वाला पहचान लेता। आंख वाला दीपक की रोशनी से पहचान लेता है कौन सा दिया जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा। खाने की क्रिया, बोलने की क्रिया, चलने की क्रिया, ये देह की प्रत्येक क्रिया ज्ञानी और अज्ञानियों की समान हो सकती है, मगर इन क्रियाओं में बहुत बड़ा अंतर है कि ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया जागृति पूर्वक है और अज्ञानी की प्रत्येक क्रिया बेहोशी सहित है, बेहोश है। कभी कभी सत्य बोल दे कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, शास्त्रों से पढ़ करके, गुरु के मुख से सुन करके, मगर सिर्फ पढ़ने और सुनने मात्र से कोई ज्ञानी तो नहीं हो जाता। सिर्फ बुद्धि के व्यायाम से चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति की स्पर्शना तो नहीं हो सकती। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति की स्पर्शना तो तब होती है जब बुद्धि से पार बुद्ध को दृष्टि में लेता है, बुद्धि को देखता है सामने और बुद्ध को देखता है यहां। बोलने वाला तो सामने दिखाई देता, मैं अभी तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर ये मेरा ही दृश्य सामने दिखाई दे रहा, ये मेरा ही दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। मगर ये दृश्य, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये सामने दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी सभी को अपने अपने दृश्य
अपने अपने मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पर सामने दिखाई देता होगा। जैसे तुम वहां पर वो दृश्य देखते हो, बस उतना ही दूर तुम अपने शरीर को देखो और ये देखो कि जहां ये दृश्य है, उस दृश्य में जैसे ये आंख मिली नहीं है, आंख दृश्य से दूर है, ऐसे ही तुम देख सको कि यह ज्ञान ये राख की दीवार से उतना ही दूर है। ये ज्ञान की सत्ता, यह चैतन्य सत्ता, ये बुद्धि से उतनी ही दूर है। यही तो भेद विज्ञान की परम कला है। सपने को मत छोड़ो, जागने पर जोर दो, सपना सहज ही छूट जाएगा। और जितने भी अधर्म के कार्य होते हैं वो सब बेहोशी से होते हैं।